This was a case study, and keeping view of the same culture, we expanded to 400 kilometer in Delhi Metro, and right now is 1000 kilometer operation all over India in 21 cities. So why do you think कि हमारा जो Indian Railway है has become an important part of India's urban transformation? I has taken an initiative and opened one center of excellence in Talan and underground space. 34% of the urban population is there. If we have not addressed the mobility, nothing will happen. For that, metro is the backbone of this mobility. Delhi Metro is catering 70 lakh people per day with a route kilometer of 400 kilometer. Big transformation, big change. हमारे लिए कलकत्ता मेट्रो एक केस स्टडी था, और केस स्टडी में हमने देखा कि इतने इनहेरेंट आपके प्रॉब्लम्स थे, वो हमारे लिए केस स्टडी हो गया कि हमने जब चाहा कि जब अपना मेट्रो हम दिल्ली में बनाएं तो एटलीस्ट जो वो चीजें रिपीट ना हो. So welcome people to the next episode of Zenith Dialogues, where we bring together visionary minds shaping the future of transportation. I, Rabia Bhatia, we will dive into the world of metro and high-speed rail technologies that are driving the next generation of smart urban mobility. India's metro systems are just not changing the way we travel. They are redefining how our cities breathe, move, and grow. And leading this transformation is one name that commands immense respect, who is none other than Shri Daljeet Singh ji. Namaskar, sir. Namaskar. A seasoned works director with deep roots in India's railway manufacturing sector, he brings over 3 decades of rich experience in transportation, planning, bridge engineering, and project execution. An MTech graduate from the prestigious IIT Kanpur, Shri Daljeet Singh ji has been part of the metro movement since its early days, and has closely witnessed the evolution of DMRC as a global benchmark in urban transport. In today's episode, we talk about the challenges, technologies, and that has shaped the future of metro and high-speed rail. DMRC's global positioning, the urgent need for skilled talent in the rail sector, the role of AI and cybersecurity, and why we need a new breed of rail leaders for tomorrow. So stay with us. This is going to be a powerful journey throughout for the concrete, code, and cutting-edge railway systems. So thank you so much, Shri Daljeet Singh ji, for coming here. Thank we you. welcome you. Thank you very much once again. Thank you very much for calling us on this prestigious podcast. Thank you, sir. Thank. तो सर चलते हैं हमारे सेगमेंट क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आज के पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आप जैसे सीनियर लीडर से सीखना ना कि बच्चे के लिए, बल्कि हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना शायद से, मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ भगवान एवरी डे कुछ ना कुछ सिखाता है, उसी तरह से आज हमें आपसे बहुत कुछ यहाँ पे सीखना है और आपको बहुत कुछ देकर भी जाना है. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला. चलिए बनिए रहिए हमारे साथ. Urban mobility and metro rail. First question. What was your first experience with metro projects like, and how was the landscape changed since then? In fact, first and foremost, my observation of metro was the Calcutta Metro. And what we heard that work has started in 1972 and completed 3.5 kilometer in 1984. It took 12 years just for completing 5 years. There was lot of cost overrun, delay, inconvenience to the commuters. This is an account of various parameters. One and foremost is it is just one of the project of railways where priority was not
for them to take care of that part. Second was that there was limited technology during that time, and people not those who are involved in that, they were not knowing what is the good technology and is not the working culture there, the technology what there, or not people who are not conversant with that. A result, that's it. Taken 12 years for completing just a 3 kilometer, 3.5 kilometer. And phase one of that, it took 23 years, means in 1995, 20 years, 20 kilometer has been completed. So that was a learning experience for us. That learning, that made a case study for us. And whatever the shortcomings was there in that, we have just inculcated while we are conceiving the Delhi Metro projects. First and foremost, technology I was mentioning that we not know, if you not match with the pace, the technology which is proven all over the world will not survive that. Second, the transportation is a state subject. For them, main constraint is the money. The money makes the mayor go. You must be heard of that way. And for this is a very capital intensive project. The idea came where it was chosen as Dr. E. Sardhan as a managing director of SPB company. This is the first time when we know that it cannot be done by a Ministry of Railways. It should be isolated SPV, means special purpose vehicle, where 50% will be state owning it and 50% center. And funding mostly has to be a multilateral agencies. Keeping in this mind, the provision in DPR has been made. And some of the latest technology, like the automatic train operation, the gaze, which is not similar to the gaze prevalent in the railways. Okay. Then safety standards, quality standard, which is not heard during that period, right, at least in the construction industries. That was kept in mind, and accordingly, team was made to travel all along the metros over the world, and seeing the Delhi conditions, it was taken in this provision of the contracts. We engaged the general consultant, again the expatriates who were well conversant with the latest metros concept. Based on that, this tender was floated and it was commissioned in the shortest time, 7.5 kilometer in 4 years. Though it was conceived, it has to be in 7 years, but precisely it has been compressed. It is the first time in history that any infra of this scale has been compressed from 7 years to 4 years. 1998 it started, and 2002 first line 7.5 kilometer stretch has been commissioned. And this was a case study, and keeping view of the same culture, we expanded to 400 kilometer in Delhi Metro, and right now is 1,000 kilometer operation all over India in 21 cities. That's a remarkable improvement in the change India has got. That's a great thing, sir. Thank you so much for sharing this information with us. Actually, sir, उस टाइम की अगर बात करें, there was no technology, there was no learning, कोई skill नहीं था किसी के पास. Still we started ये सब करने के लिए, but actually इंडिया ने एक step ahead लिया था कि हम कुछ करके दिखाएंगे. And today it has proved that yes, we are in the right path actually. चलते हैं इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो व्हाई डू यू थिंक कि हमारा जो इंडियन रेलवे है हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? ऐसा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में migration is bound to happen in cities. Absolutely. As on date, 34% of the urban population is there, and it is continuous increasing, and it is expected that it will be somewhere 45% by 2050. Okay. With this enormous migration from the villages to the city, right. And for the economic growth, foremost is important is the mobility.
if you have not addressed the mobility, nothing will happen. For that, metro is the backbone of this mobility. And what we have seen, the theoretical aspect that has been translated, as on date, Delhi Metro is catering 70 lakh people per day It's a with a big route number. kilometer of 400 kilometer, and that has been expanded within 27 years, means 98 till 2025. It is 400. It is one of the fourth largest in world as per the network is concerned. Big transformation, big change. Because traffic congestion has to be reduced, then it has to be efficient, has to be the pollution free. What are the adjectives needed for the sustainable growth? That is fulfilled by this metro. Beautiful, sir. Very true. Very rightly said, sir. Sustainable, Viksit Bharat, sustainability. Yes. Thank you, sir, for such a great information with sharing information with us. अब बात करते हैं सर दिल्ली मेट्रो रेल की. वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि दिल्ली मेट्रो जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल बन चुकी है. So why do you think it's not just for India but for many other countries it has become a role model, I could say. रोल मॉडल क्या है कि ऐसा है कि आप अगर कन्फाइन टू, कहते हैं ना कि आप अगर कुएं के मेढक हैं तो आप सोचेंगे कि यही दुनिया है, ये चीजें. यू हैव टू compete with the world. So means I had to compete with the world. For that, I need to adapt the latest technologies. The need of the hour during that period, what was prevalent during that period had been just inherited, like CBTC, regenerative braking, driverless train, ticketing, digital ticketing system, AFC, automatic fare collection system. These are the few things what I can say that has to be the need of the hour. And that has been taken care of. And based on that, in the operation stage, when Delhi Metro is carrying 70 lakh people, with the punctuality of train is 99.9, which we are at par with any world KPI standards. Then it is cost effective as compared to any compare with the city in the world. And it is a pollution free and efficient. This matches with the global standard, I can say. Based on that only, even some of the countries like Dhaka, the Jakarta, they approached us and we have given the consultancy there. Wow, that's wonderful. That's really remarkable, actually. India has become a consultant for other countries in terms of metro. Yes, very rightly said, very cost effective, very efficient also. और मतलब इतनी सारी कैपेसिटी भी है और टेक्नोलॉजी तो अमेजिंग है मेट्रो की. प्लस ऑल सिक्योरिटी थिंग्स आर देयर. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ पीपल आर नॉट सेफ और सिक्योर्ड इन दिल्ली मेट्रो. पीपल फील सेफ रादर देन गोइंग वाया कैब. दे फील बेटर, दे फील कि हाँ मेट्रो ज्यादा सेफ है तो उससे ट्रैवल किया जाए. So yes, lot of things has made Delhi Metro a role model for other countries. नेक्स्ट चलते हैं सर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की अगर बात की जाए और हाई स्पीड रेल की बात की जाए मेट्रो. Which technologies do you think are silently powering the smooth functioning of our metro systems? जो फॉरमोस्ट हमारा तो एक CBTC है जो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है. Okay. That is a very important part to play for that. That is a very important technology that we have inherited right from beginning, where automatic train operation, automatic train control and supervisory of all the system is being done. And we keep on updating it as per the world, what is happening that way. That is a foremost. Then from environment, energy efficiency point of view, we have inherited regenerative braking, where the recycle of energy is fed into the system, and up to, I can say, 30% of the energy that is being saved on account of regenerative. This is one of the technology here. Then I can say the ticketing system,
The old Calcutta metro, there used to be the paper system, बिल्कुल which right from we have started with journey with a token, then smart card, and as on date it is all QR code, QR and then now even as on date ONDC, our apps that can be used for purchasing Absolutely. ticket. That's the biggest buzz of Yes. these days actually कि हाँ हम लोग घर बैठे फटाफट से we can take the ticket or a token. Yes. बिल्कुल सही सर. तो आपने सर एक्चुअली ऑलमोस्ट सेकंड आंसर क्वेश्चन का भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे ही दिया है. इट्स जस्ट दैट वी हैव बीन हियरिंग ड्राइवरलेस मेट्रो आल्सो. तो आपको क्या लगता है हाउ डू दीज टेक्नोलॉजीज वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ स्मार्ट मेट्रो एक्चुअली? तो सीबीटीसी का आपने बताया, जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी बताया. तो ड्राइवरलेस मेट्रो की अगर बात की जाए, सो कैसे ये टेक्नोलॉजी और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मतलब वी फील स्टिल सेफ एक्चुअली? देखिए, जो ये सीबीटीसी जो आप नाम सुने, इज ए कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल है. जी जी मीन्स इंडियन रेलवेज में फिक्स ब्लॉक सिस्टम हुआ करता था. मीन्स ऑल सिग्नलिंग, जब एक ब्लॉक 5 किलोमीटर या बिटवीन टू स्टेशन के बीच में है तो उसमें ट्रेन कोई अलाउ नहीं होता था. लेकिन सीबीटीसी इज ए मूविंग ब्लॉक. तो ट्रेन अगर मूव कर रही है तो उसी के अंदर ही आपको सेफ ट्रेन को रखना है. और वो अगर ब्लॉक मूव करता रहेगा तो आप जो हेडवे है आपस में ट्रेन की जो डिस्टेंस है, यू कैन रिड्यूस इट. तो एज ऑन डेट हम 2.5 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी पर चला रहे हैं. मीन्स एक ट्रेन उसके जस्ट 2.5 मिनट्स के पीछे उसके पास लगी रहती. मीन्स ये सीबीटीसी के द्वारा ही पूरा ये सिस्टम किया. अदरवाइज आप जो मास ट्रांजिट अगर इसे कहते हैं कि अगर इतने आदमी को लेके चलना है तो आप जब तक आप क्लोज इंटरवल में और इतने फास्ट मूव नहीं करेंगे तो इस अदरवाइज आप मूव नहीं कर सकते. और तो कोई आपके पास सिस्टम है नहीं. मीन्स आपको रेगुलर इंटरवल दैट हैज टू बी फेल सेफ. मीन्स ऐसा नहीं कि कोलिजन हो जाए. तो ये आपको एंटी जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन भी करता है, ऑटोमेटिक ट्रेन का ऑपरेशन भी करता है कि कब ट्रेन को रोकना है, कब ट्रेन को चलाना है, कब ट्रेन को स्टेशन पर कितने देर रोकना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है. आपका सीबीटीसी डिसाइड करता है. जिसके कारण क्या है कि आपको जो रिसोर्सेज हैं उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि अगर हमारा लीन पीरियड में अगर इस समय कम्यूटर्स काफी कम है तो वाई अननेसेसरी वी इंक्रीज द हेडवे. वी शुड जस्ट सो दैट एटलीस्ट एनर्जी सेविंग कैन बी डन. रही बात आप जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात है, अगेन हम कई चीजें देखते हैं कि जो एनर्जी हम वेस्ट हो जाता है. तो जब ट्रेन कोस्टिंग करता है, कोस्टिंग इन द सेंस होता है कि जब आप एलिवेटेड पर ट्रेन जब डाउन साइड जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है. और उस काइनेटिक एनर्जी को आप यूज करिए तो उस काइनेटिक जो कोस्टिंग उसको कहा जाता है. कोस्टिंग में काइनेटिक एनर्जी को आप कन्वर्ट कर देते हैं आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में और उसको रिस्टोर कर देते हैं. तो करीब टू द एक्सटेंट ऑफ 30% जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से फिट कर देते हैं. मीन्स इससे काफी एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम हमारा हो जाता है. थर्ड होता है हमारा जो अभी ड्राइवरलेस की बात कर रहे हैं. देखो ड्राइवरलेस ट्रेन क्या कि जब हमने शुरुआत की, बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो ड्राइवरलेस ट्रेन है ये ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन का एक वन ऑफ द स्टेज है. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस ट्रेन. इसको कहते हैं GOA, गोवा 1, गोवा 2, गोवा 3 एंड गोवा 4. गोवा 2 में ट्रेन का जो एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, स्टॉपिंग है वो सीबीटीसी से करते हैं, डिसाइड कर. लेकिन ट्रेन पर डोर खोलना, डोर बंद करना, चलाना, ये सब अभी भी ड्राइवर बैठ के वो काम करता है. ये गोवा जो ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 2 है, स्टेज कहते हैं, वो स्टेज में होता है. धीरे धीरे जब हमें एक्सपीरियंस हुआ और वर्ल्ड ओवर जब हमने देखा कि कुछ इसको और ऑटोमेशन किया जाए तो वी हैव स्विच्ड ओवर टू गोवा 3. गोवा 3 में ऑल ऑपरेशंस मीन्स एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, आपका स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन्स,
scheduling of trains, the braking of trains, everything is done by automated, and that is controlled through operation control center. This is remotely. But driver is there as a supervisor. He's not doing anything. He's just roaming in that part, and his job is just in case of emergency, suppose there is a fire or some eventuality happens, that he talk with the operation control center and then do that part. Next step is a Goa 4, where even driver is not there, means supervisor is not there. And as on date, our two lines, the magenta line and the pink line, line 7 and line 8 are line Goa 3. And from the people mentality that they should not fool this, how things are moving. Exactly. We are not switching over to Goa 4. Otherwise, easily it can be done. Okay. But the people, at least to those who have traveled that way, they must have seen there was no engine, there is no cab in that part. They can just enjoy the track, seeing all that sort of thing. So we are used to with that. And that is a driverless train, this Goa 4. That stage, already I think 2 or 3 countries like Paris, line 14, and some other countries are there. Not all that is a. So we have yet to reach to that state as well. To some extent, we have already. Already we are reached. We are not switching over deliberately. That is a Goa 4, because no operation is done. Because of the mindset of the people. That should not. Otherwise, they are not doing anything. Those who are supervisor in the train, he is not doing anything. क्या कितनी आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी. देखिए ऑडियंस, हमारी इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो शायद हमें किसी को भी नहीं पता होगी कि कैसे हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं टू ड्राइवरलेस मेट्रो एक्चुअली. सो थैंक यू सो मच सर, दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल कि गवर्नमेंट ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट किया और हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं. इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. How does India strike a balance between adopting global innovations and meeting local conditions in metro projects? अभी मैं CBTC की बात कर रहा था. That's true. तो ये CBTC अगेन इज ए ग्लोबल आपका स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड ओवर इन द मेट्रोस. हमने इमीडिएटली इसको अडॉप्ट किया. रीजनरेटिव ब्रेकिंग अभी मैं बात कर रहा था. AFC सिस्टम जो हमारी जो लेटेस्ट वॉट एवर यू डेवलप यू हैव सिस्टम, बट वी हैव ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि ये जो टेक्नोलॉजी हम इनहेरिट कर रहे हैं एटलीस्ट लोकल कंडीशन को तो फुलफिल लग रहा है. ये नहीं कि हम स्विट्जरलैंड में रहते हैं, हमने कोई चीज टेक्नोलॉजी देखी उसको इनहेरिट कर रहे हैं. वी आर सीइंग कि दिल्ली का कंडीशन और बेंगलोर का कंडीशन क्या. तो वी हैव टू ऑलवेज जो टेक्नोलॉजी वॉट एवर इज प्रिवलेंट ऑल ओवर, इट हैज टू बी we always looking for the local condition that way. तो हमने जब भी देखा कि भाई दिल्ली है जहाँ ट्रैफिक फिगर इज वेरी हाई, तो वहाँ ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है, हमको हेडवे बढ़ाना है, ये चीजें, तो हमने उस लोकल कंडीशंस को फुलफिल किया. देन मेट्रो आपने बना दी. अब टिकटिंग सिस्टम अफोर्डेबल नहीं है तो कैसे सस्टेन करेगा, क्यों उसको स्विच ओवर करेगा. आज जो 70 लाख है रहा है, तो आखिर वो कोई भी आदमी इंटेलिजेंट हो गया कि अगर स्विच ओवर करता है तो कुछ सोच के करता है कि नहीं, ये अगर स्विच ओवर करना है, ये मेरे लिए एफिशिएंट है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो करेगा. तो ये हमने ध्यान में ऑलवेज रखा है कि ये जो टिकटिंग सिस्टम है इट शुड बी एट पार विद द पीपल एक्सपेंडिंग कैपेसिटी. थर्ड हमारा है कि जो ये नहीं कि हमने इंग्लिश में साइनेज लगा दिए, ये कर दिया, तो हमने लोकल, मान लो हम कन्नड़ में हैं तो कन्नड़ का भी यूज करें, इंग्लिश का भी यूज करें, अगर मलयालम में है तो मलयाली का यूज. तो ऑलवेज वी हैव टू कीप इन माइंड. फिर है कि हम इन कॉपी तो कर लिए, उस टेक्नोलॉजी काफी है अगर, बट दैट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव. अपडेट होता रहता है तो हमें उसको पे, अगर अपडेट करना है तो आई हैव टू पे दैट. फॉर दैट सस्टेनेबल उसको हमने फिर मेक इन इंडिया कंसेप्ट लाया एंड मेड इन इंडिया. हमने कोलैबोरेशन जो ग्लोबल फर्म्स हैं उसके साथ कोलैबोरेट करके, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, CCT में हमारा एल्स्टॉम कंपनी है जो रोलिंग स्टॉक है, यहाँ बना रहा है, और यहाँ से अब जो
रोलिंग स्टॉक के जो डब्बे हैं और वो गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, वहां यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। सेम वे बीएमएल जो हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसने भी अपने ग्लोबल फर्म से कर लिया है और दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट पार्ट। तो मींस वी हैव स्विच्ड ओवर टू मेनी थिंग्स, लाइक आई कैन गिव यू एग्जांपल, दिल्ली मेट्रो IATS मींस करते हैं इंडियन ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरवाइजरी सिस्टम है, उस वो हमने BEL का साथ कोलैबोरेट करके ये डेवलप कर लिया है और हमारे एक लाइन 1 है जो रेड लाइन कहते हैं, वो हमने इसमें इंप्लीमेंट कर दिया है। सेम विद ICBTC, इंडिया CBTC अपना इंडिजिनस हम डेवलप कर रहे हैं और होपफुली वेरी शॉर्टली विल बी इन ए प्लेस टू do indigenously. That again with collaborative with the PL, like way SCADA system and a supervisory control and data acquisition system होता है, जो हर सब सिस्टम है जितने भी हैं, लिफ्ट एस्केलेटर, इसके मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो हमने इसको भी एज ए लोकल वी वांटेड टू डू दैट लोकल, सो दैट एटलीस्ट वी शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन फर्म्स फॉर दैट। That's a wonderful thing, sir. So वो एक बैलेंस बना के हम चल रहे हैं जी। basically. That's great, sir. Thank you so much. And we come to the next question. आपने अभी शायद पेरिस की बात की थी, sir. तो would you like to share some global metro project or a country that inspired how we approached metro rail in India? Actually, ये मैं आपको मिथ आप लोगों को बता दे कि दिल्ली मेट्रो ने किसी को से कहीं इंस्पायर नहीं हुआ। दिल्ली मेट्रो इंस्पायर कर रही है। नहीं, क्यों, शुरुआत तो हमने की, फेज 1 में किया, तो इंस्पायर हमने कहीं से नहीं लिया। हमारे लिए कलकत्ता मेट्रो एक केस स्टडी था, और केस स्टडी में हमने देखा कि इतने इनहेरेंट आपके प्रॉब्लम्स थे, वो हमारे लिए केस स्टडी हो गया कि हमने जब चाहा कि जब अपना मेट्रो हम दिल्ली में बनाएं तो एटलीस्ट जो वो चीजें रिपीट ना हो। लेकिन जैसे फंडिंग की बात थी, टेक्नोलॉजी की बात है, जहाँ लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी, टनलिंग है, जैसे वहाँ मैनुअल टनलिंग की गई थी, यहाँ टनल बोरिंग मशीन से टनलिंग किया गया। देन कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी हमारी वहाँ जो ओपन कट एंड कवर, जो कम्यूटर्स 10-10 साल तक वो देवर फील एट, ये मीन्स कम्यूटर फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नहीं, जो हमने सोचा कि जब हम करें तो एटलीस्ट इट शुड बी कंस्ट्रक्शन फ्रेंडली। देन छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग विद, जैसे ट्रैफिक मार्शल्स हैं, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं होती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, एनवायरमेंटल, all sort of things has been incorporated, and that is the things I can say. So we've not been inspired by any foreign. No, again I tell you, this is the reason. Now जब हमने स्टडी ये देख लिया तो हमने अब सोचा कि इसको बाहर स्टडी देखें, तो हमने टीम यहाँ से डॉक्टर ईसर घर ने अलग अलग कंट्रीज का, खासकर वो कंट्रीज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी जो नया बना रही हैं, कि जस्ट लाइक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाजार में आता है तो लेटेस्ट होता है, तो सेम वे जैसे लंदन मेट्रो सबसे पुरानी मेट्रो है, तो वो तो बहुत पुराने आउटडेटेड है, उसकी हर चीज आउटडेटेड है, तो वो चीज हम क्यों देखें? हमें तो सीखना चाहिए कि जो लेटेस्ट हमारा जो अवेलेबल है। तो मोस्टली वी हैव सीन दैट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या फार ईस्ट है, लाइक सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो और पेरिस, यू कैन से दैट, जहां एक्सपेंशन कुछ हो रहे थे, उसको जाके स्टडी किया, और उसके जो चीजें, जो टेक्नोलॉजी हमारे लोकल कंडीशंस को सूट करे, मीन जहां हमारी पॉपुलेशन है जो मैच करती हैं, उसकी पॉपुलेशन मान लो टोक्यो की काफी है जो हम वैसे मैच, ये नहीं कि हम स्विट्जरलैंड की कोई हिसाब से हम कॉपी कर लें। प्लस हमने उसके बाद जो जनरल कंसल्टेंट लगाए, जो क्योंकि हमारा इनहेरेंट किसी को कोई नॉलेज तो होता नहीं, हमने कंसल्टेंट लगाया और कंसल्टेंट ने फिर वही रिकमेंडेशन दिया। तो इट इज द रिकमेंडेशन एंड दिस केस स्टडी प्लस जो फॉरेन हमने जाकर स्टडी किया, जो टूर स्टडी, ये एक अमेलगमेट करके जो हमने चीज निकाली, वो हमने टेंडर कंडीशन में डाली, एंड देन दैट इज द, यू कैन से दैट सक्सेस स्टोरी, दैट study, it's our own hard work actually. Yes. The Delhi Metro stands out on the global stage. तो जो मिथ है, लोग कहते हैं कि कॉपी किया चीज, ऐसा कुछ भी है कॉपी।
So हमारी मेहनत, it's all about our hard work. No, I can say, but we have studied ourselves, gone different. चलिए सर, so इसके साथ I think we can say proudly say that Delhi Metro stands out on the global stage actually because of our hard work, because of our case studies, because of our own learnings actually. So Delhi Metro. इसके साथ ही सर चलते हैं अगले segment पे which talks about the talent and future rail workforce. तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी, looking at how metro system is evolving, what kind of professionals and will we need in the next 5 to 10 years? In fact, based on my experience, what I have seen that whatever being taught in institutions, they are on the course. They are not giving the telling what is really happening in this transportation sector, especially the metros. So that's some of the things what is immediately needed to fulfill our dream of making 1,000 kilometer, which is right now construction is going on metros. For this fulfilling, we need to have the people which are experienced and hands on that part. Right. For that, what we have seen that like in tunneling part, tunnel expert is required. The urban planner, because we are working in urban environment, urban planner has to be there. We can study the mobility part. Mobility has become a very important part. Right. He should know the multimodal integration of that way. The expert has to be there. Then, since it is already operational, people and it is likely to be operational in further in other cities, we need to have like data analyst, because latest technology like CBTC and other mode of technology are there, they have to be there. Then second, again, since it is a AI based and technology and we are working on the latest one, so it has to be protected. System has to be protected. Then we need a cyber security experts are needed for that. Then safety. Safety is a paramount. In fact, after Delhi Metro, the safety standards has taken the foremost first before the construction. The need, again, this is a continuous process. Those who are interested, they should adopt the safety experts by doing the safety certification courses of diploma. The quality experts again needed. The environment experts is again needed. So basically, we are short of skilled labor actually. Yes. The talent is there, but the skill we have to invest in both front, because yes, we have skilled labor and skilled people. That engineers or non-technical engineers, right, fields are there. In both fields it is there. Because if you want to make a economically developed country, right, 2000 right, what is 47 2047. So whatever the GDP or pace of growth is required, for that you need to have a skilled people. It cannot be the magic stick. It can be done overnight. Absolute, very true. So very rightly said. It has to be people that who are skilled actually. Mm-hmm. सही है सर, बहुत सही बता रहे हैं. तो I think this is the advice you can give to young engineers. तो आप बताइए क्या young engineers को you can motivate, you can guide, you can give advice so that they can work in metro and transportation sector. ऐसा है कि mostly आपने जो ट्रेन ऑफलेट आई हैव सीन दैट, क्योंकि ये सेक्टर्स ट्रांसपोर्टेशन है, अगर फील्ड में काम करना चाहे तो लोग nowadays not preferring the core sector like civil engineering. They want to do the white collar job where sitting in. लेकिन उसके अंदर भी हमारा जो AI बेस्ड हमारे जो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के हमें स्टूडेंट जिसको थोड़ा भी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ अगर झुकाव है तो दे शुड लर्न द CBTC, the regenerative braking system, driverless train operations, like all metro, one SCADA system, they had to study there.
means they should associate as a internship, do internship with the all Yes, metros where all this is metros. working, so that Ji, they ji. can learn the hands-on. And in continuity of that, in fact, just I'll give you one example which I have started. I have alma mater of did BTech from IIT Varanasi and MTech from IIT Kanpur. Ji. I thought, based on my experience, what I have seen, there is a gap between the academia and the industry. Lot of That- that. So I, as a taken an initiative and opened one center of excellence in Talan and underground space, Excellent, sir. and that is housed in Delhi Metro campus. Okay. And their scope is there that BTech courses will be imparted in the transportation sector, tunneling especially in the IT PHU, and there are 6 months hands-on training that has to be imparted in Delhi Metro. And in addition to that, we have made a repositories of all the case studies which has happened in the last 20 years or 30 years in these metro, through the vendors, the consultant, the engineers associated with the contractor, and made a online case study, so people can just have the first-hand information on the case study. This model which has been conceived and have started using. Hope if this is a minuscule step, I can say, if it is inculcated in the bigger, if you make a university like all over India, That's right. different part, that the skilling can be solved to greater extent. So are we actually connecting with the education sector or government of education? Because so that we there's can... a gap. Yes, What has been of being course, taught, there is a and gap. that is happening in industry, because industria's problem is nobody is able to address, and the academia is what have been taught is not being addressed in the industry. So that yes. gap It's a has to huge be gap, there. actually. That has to be collaboration need to be done. Collaboration Though needs. this is a small step, the same way if it can be replicated in other part, that way sort of I can say that Excellent, is sir. there. This is a very important information sir has shared. So youth, बच्चों, इस information को जल्दी से capture करो and take the next step for your career. Thank you very much, sir. नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, हमारा जो है AI ड्रिवन सेगमेंट, AI डिजिटल रेल एंड साइबर सिक्योरिटी. तो सर इसके ऊपर आई विल लाइक टू आस्क यू, हाउ इज AI changing how metro systems are maintained and operated? ऐसा है कि जैसे अभी मैंने बताया कि एफिशिएंट किसी सिस्टम को एफिशिएंट होने के, जब तक आप एआई बेस्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट डू. जैसे वर्ल्ड ओवर में हो रहा है, हमने भी अपने सिस्टम को एआई बेस्ड किया है. अभी हम सीबीटीसी की मैं बात कर रहा था, जो हमारी ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन है, अगर मेरे को एफिशिएंसी उसको चलाना है, अगर उसके एनर्जी अगर मेरे को वो करना है, तो मेरे को एआई लाना पड़ेगा. और इसीलिए हमने एआई को लाया है. सेम वे हमारा जैसे सीसीटीवी हमने किया, तो सीसीटीवी एक जस्ट वैसा नहीं होगी. क्राउड कंट्रोल अगर करना है, अगर तो उसको अगर हमने एआई यूज नहीं किया तो हम क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू कैन सी दैट, क्योंकि ये मास ट्रांजिट सिस्टम है कि अगर 2000 आदमी निकलता है, हटता है, अगर ट्रेन कोई वैसा हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें क्राउडिंग ना हो, तो क्राउड कंट्रोल इज वन ऑफ द पार्ट जो एआई ड्रिवन ही कर सकता है. लाइक डिजिटल हमने जो टिकटिंग सिस्टम की बात कही, तो ये भी एक वन ऑफ द एआईज हैं जहां दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट वे, एंड दैट वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. That's great, sir. AI is the future, actually. Yes, the future. Even I was mentioning the SCADA, जो हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन है, कि जितने भी हमारे सब सिस्टम बने हुए हैं, लिफ्ट है, एस्केलेटर है, एयर कंडीशनिंग है, वेंटिलेशंस हैं, यू नेम ऑल द सिस्टम व्हाट इज हैपनिंग देयर, अगर इनको ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं किया जाए, जैसे मान लो इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, अगर हम इसको
मैनुअल मोड में काम करेंगे, इट विल टेक टाइम एंड वर्क इज गोइंग टू हैम्पर. मींस डाउन टाइम को रिड्यूस करने के लिए यू नीड टू हैव एआई. दैट प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जिसे कहते हैं ना, यू कैन प्रेडिक्ट बिफोर इट इज हैपनिंग, सो दैट एटलीस्ट मेजर थिंग्स शुड नॉट हैपन. तो ये चीजें हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. अगर नहीं करेंगे तो थिंग्स विल नॉट, we cannot survive, we cannot sustain that. Right, sir. So, sir, we were talking about AI and cyber security as well. So, do you think that enough has been done when it comes to secure the rail system from these cyber threats, or what needs to be more done actually in cyber? मेट्रो को ही क्यों के ले ली आप, हर सिस्टम में आपने देखा होगा कि अगर जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और तो उतने ही साइबर क्राइम्स हो रहे हैं जैसा हो रहा है, तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ. ऐसा नहीं है कि हम फुल प्रूफ कोई सिस्टम हो सकता है, लेकिन हमने जो हमारे जितने भी सिस्टम वर्क करते हैं, हमने उसमें जो एनक्रिप्टेड है हमारे, लेकिन दैट इज ए कंटिन्यूअस उसको चेक करना, अपडेट करना, और जो पीपल एसोसिएटेड उसको ट्रेनिंग देना कि भाई ये लेटेस्ट है, ये इसमें ये चांसेस हो सकते हैं साइबर क्राइम के और साइबर थ्रेट हो सकता है, हमारे नेटवर्क में कोई एंटर करके दे कैन प्ले विद दैट. तो दैट इज बीइंग ट्रेनिंग इज बीइंग गिवन, और दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. यू कैन नॉट बी जस्ट सिट आइडल एंड टेल दैट हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है. दैट कैन नॉट बी. दिस इज ए कंटिन्यूअस, यू हैव टू डू दैट. ग्रेट. सो next question on this segment only, what excites you about how digital technologies are transforming railways? मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अगर आप सोच लीजिए, अगर कल ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम नहीं होता, अगर ये मैनुअल मोड में हमने टिकटिंग देते जो, तो आप समझ ले क्या हालत होता, जो आप एफिशिएंसी की बात करते. तो ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम और उसको हमारे स्मार्ट कार्ड अब तो वेब बेस्ड हो गए हैं जो क्यूआर कोड सिस्टम से, तो वो हमने टेक्नोलॉजी अगर नहीं अपडेट किए तो जो फास्ट मूविंग है, एफिशिएंट है, तो वो सिस्टम कैसे उसको कोप अप करेगा. इसके लिए हमें जरूरी है कि ये जो सिस्टम जो भी डेवलप हो रहा है, वी हैव टू कोप अप विद दैट. और कोप अप के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को अपडेट रखें, और this is a continuous process. Again, I'll tell you, this is a continuous process. Learning, skilling, yes, that is there. And updating the technology. Updating the technology. So, thank you very much, sir, for sharing deep insights on this segment as well. When we talk about such insights, क्योंकि हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी को भी, so there is a vision for the future. तो सर उसके बारे में अगर बात करें, डू यू थिंक दैट स्मॉलर सिटीज विल स्टार्ट गेटिंग दीज मेट्रो सिस्टम सून, और वहां पे कुछ चैलेंजेस है, सो व्हाट आर दोस चैलेंजेस देयर? ऐसा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एक पॉलिसी निकाली है कि कोई भी सिटी जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर मेट्रोस. बट मेट्रोज को इमीडिएटली स्विच ओवर ना करके दे कैन गो फॉर ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो उसके लिए, क्योंकि ये जो मेट्रो है काफी कैपिटल इंटेंसिव है, और देयर इज ए स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है कि हर सिटी को सेटिस्फाई कर सके. तो दैट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन. तो सिटीज, अगर हम दिल्ली मेट्रो जहाँ जनसंख्या 3 करोड़ प्लस है, वही सिस्टम अगर हम टीयर 2 सिटी में भी लागू करें तो इट कैन नॉट बी वायबल. अब टीयर 2 सिटी में वी हैड टू नाउ स्टडी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मींस मेट्रो के भी अभी जो पॉलिसी में हमारा मेट्रो लाइट आया, जो कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, कॉस्ट भी 40% कम है, वन हैज टू स्टार्ट थिंकिंग. बट 2-5 साल से भी ज्यादा हो गया है पॉलिसी आया, लेकिन अभी किसी स्टेट ने या किसी सिटी में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. तो वो एक विल चाहिए, और स्टेट को विल जब तक नहीं करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है. यूजुअली मैंने व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि जब दिल्ली मेट्रो में कोई चीज अगर होती है तो वो उसको हर सिटी इनकलकेट की कोशिश करता है, जो बाकी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. लेकिन somebody somewhere has to take a call, तभी अदरवाइज इतना कैपिटल इंटेंसिव है ये प्रोजेक्ट
कि वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट ये फेयर बॉक्स में टिकटिंग सिस्टम, इट हैज टू बी नॉन फेयर बॉक्स सिस्टम आपको लाना होगा। नॉन फेयर के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू पुट ए एडिशनल सेस ऑन द इन्फ्लुएंस जोन और अदर मोड आपको रिलैक्स करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको यू कैन गेट मनी। इंफ्रा जैसे अर्बन इंफ्रा फंड है, आपको जिस फॉर्म में भी आप उसको फंड कर रखना पड़ेगा। नहीं अदरवाइज लोन लेना और लोन लेने तक ही नहीं है, इट हैज टू बी रीपेड, और विच ऑलरेडी इन प्रायोरिटी ऑफ स्टेट इज डिफरेंट। इसमें लोन लेकर करना, दैट इज चैलेंजेस आर ऑलरेडी देयर। So आपको क्या लगता है, will these challenges be? This is being taken, और लेकिन स्लो प्रोसेस है, बट इट हैज टू बी डन। It has to be, अदरवाइज exactly. इट कैन नॉट बी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। जो आप एक दिल्ली के लिए वो दैट कैन नॉट बी, जहां जनसंख्या ही 25 लाख है, आप उसको कॉपी वहां करके पेस्ट करेंगे, इट नॉट बी सस्टेनेबल, इट कैन नॉट बी एनर्जी एफिशिएंट, होगा ही नहीं। आप अननेसेसरी अंडर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज आप करेंगे। So I'm sure government must be working on it, but it will take some time. It will take time. Then private PP mode. Again, Yeah, state PPP में mode. PP mode में again what I am mentioning that way कि ट्राई किया है देश में, 2-3 हमने किए, जैसे एयरपोर्ट लाइन का किया दिल्ली में, हैदराबाद का हुआ है, रिलायंस का मुंबई में हुआ। इतनी सक्सेस स्टोरी नहीं हो पाई। अगेन as you mentioned that way कि सस्टेनेबल मॉडल, ट्रैफिक फिगर जो हम देते हैं वो अगर मैच नहीं करता तो ऑलवेज प्रमोटर जो होता है कहता है कि ये इट्स नॉट मैचिंग विद दैट, और ऑलवेज दैट इज प्रॉब्लम इज देयर। तो मीन्स आपको एक दूसरा अल्टरनेट फंडिंग का व्यवस्था करना पड़ेगा। जो वायबिलिटी जो गैप है उसको या तो आप गवर्नमेंट उसको हेल्प करे, और या तो थ्रू नॉन फेयर बॉक्स से उसको करे हेल्प, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज आप सोचेंगे कि वो जो ट्रैफिक फिगर दिया जाता है उससे अगर उसके रेवेन्यू से आप उसको ऑपरेशन सस्टेन करेंगे, दैट कैन नॉट बी सस्टेन, पॉसिबिलिटी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर थ्रोइंग सम लाइट ऑन दिस पार्ट एज वेल सर। सर बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाई स्पीड रेल एज वेल। Do you think that it will become a part of our daily life, like the metro is already a part of our daily lives? क्यों नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज पहले सोचने की बात है कि पहला हमने जो पायलट प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई का किया है, इट इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव, 1 लाख करोड़ प्लस का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो इसको ध्यान में रख के फिर लैंड एक्विजिशन वन ऑफ द पार्ट है, तो जो इसका फेयर आएगा तो वो क्या सस्टेनेबल होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आप ये सिस्टम जब तक प्रूवन नहीं होगा तो रेप्लिकेट करने में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो लेकिन पहल तो लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हम बैठे रहें, अदरवाइज तो कि somebody will help us। केस स्टडी होगा, और उसको जैसे हमने दिल्ली मेट्रो में स्टडी किया और केस स्टडी बेस में हमने उसको सक्सेस स्टोरी बनाया ट्रांसपोर्ट में भी, दैट वे इट कैन बी रेप्लिकेटेड। चलिए क्रॉस 5 फिंगर्स करते हैं और दुआ करते हैं कि वी कैन बी सक्सेसफुल इन दिस एज वेल। सो थैंक यू सो मच सर। तो इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट भी खत्म होता है, तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि बात करते हैं लीडरशिप, लर्निंग एंड लेगेसी पे। सो फ्रॉम योर एग्जिस्टेंस, व्हाट मेक्स अ गुड रियल प्रोजेक्ट लीडर इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट, रेल प्रोजेक्ट? देखिए, मैं इस मेट्रो में पिछले 27 साल मीन्स 1998 से टिल 24 अक्टूबर तक मैं एसोसिएट रहा, और काफ़ी मैंने चीज़ें देखी। जो एसोसिएशन मेरा 12 इयर्स 13 इयर्स डॉक्टर ई श्रीधरन का देखा लीडरशिप, एक मेरे लिए रोल मॉडल। और वो अगर रोल मॉडल जो उन्होंने एक जो एट्रीब्यूट्स जो यूज किए, अगर वो इनकलकेट बाकी जगह हो जाए तो मेरे हिसाब से सक्सेस को तो कोई रोक नहीं सकता। मैं उसके कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। वो टीम अपनी बनाते थे, तो टीम में ये नहीं देखा कि भाई आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप ये चीज। उन्होंने एग्जांपल देता हूँ, मेरा इंटरव्यू लिया, एक
घंटे उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं, बस अपनी क्यों आना चाहते हो, हमारी फैमिली प्रॉब्लम क्या है, ये चीज ये देखिए, उसके बाद जाइए आप चीजें, ये सेलेक्टेड दैट वे। तो मैं मीन्स जो टीम बनाना चाहते हैं वो देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट में रियली इंटरेस्टेड और जस्ट स्टॉप गैप अरेंजमेंट चाहता है, Exactly. ओन करेगा कि नहीं। तो मीन्स ही वाज मेकिंग बिल्डिंग अप अ टीम दैट Those expertise and skills which were then not on the paper yes, actually. that is it. Second competency, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये डिग्री कर ली और ये हो गया, मीन्स those who are hands on exposure, the experiences, competent person, means मेरी टेक्नोलॉजी अगर है CBTC तो I should be exposure to that, and this is a continuous process. तो उसके लिए practical exposure बहुत जरूरी है। तो हमको जो उस टीम को आपको कंटिन्यूस लीडर को भी होना चाहिए, ही शुड लर्न, और अपने टीम को भी लेके चलना। थर्ड, ही हैज टू बी, इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इतने बड़े इंफ्रा में अगर इंटीग्रिटी अगर नहीं हुआ, जो वन ऑफ दी जो फाउंडेशन कहना चाहिए दैट दिल्ली मेट्रो का वाज इंटीग्रिटी। Then punctuality of work. Absolutely. Means he's dead punctual, means dot everything, even forget about the meeting. And it was, we have the clock in the every offices, and every precise, we had to, everything meeting all sort of has to be done precisely with the clock. No So a minute delay, time management, punctuality. That's That- actually these are the basic skills of the leader, good Yes, leader yes. actually. Yes. And that has been translated, not just on paper, because lot of in management has been told that these are the attributes you should do, but really one has to own it and then implement in real sense. That is the important part. Timelines. That is, yes. Then cost conscious about that. Yes. Cost overrun, time overrun. Means once I have committed whatever things, so it will has to be done. It has to be done. It cannot be no excuses. These are the excuses. मैं इस कारण नहीं कर पाया, नहीं यहाँ नहीं हुआ, ये नहीं, no. Then he has to be एक leader को well coordination with the all the stakeholders. आपका stakeholders से अच्छा आपका हो कि उसकी, then he has to be how to sail through the crisis management. एक phase 1 में मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जाइका जापानीज बैंक ऑफ है, उससे हमने मल्टी बायलैटरल फंडिंग का 60% ऑफ कॉस्ट वाज टू बी बोर्न बाय द जाइका। उस 99 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया। अब वो कंट्री ऑलरेडी हैज फेस दैट, भुगत चुकी थी, तो उसने उन्होंने कहा कि सैंक्शन लगा दिया कि अब हम आपको पैसा नहीं देंगे। अब वो क्राइसिस हो गया, उस क्राइसिस में आपको सेल थ्रू करना है। तो वो टॉप लेवल पे भी हमारे, नॉट ओनली डॉक्टर श्रीधर, टॉप लेवल पे किया गया, और द लाइजनिंग विद द पीपल फ्रॉम द जाइका कि हम देखिए वी आर कमिटेड बाय दैट। दैट इज वन ऑफ द पार्ट आई कैन से, क्राइसिस मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है। आप लैंड अगर डिले हो रहा है और तो आप कहेंगे नहीं वेरी एक्सक्यूज की लैंड नहीं मिला इसके कारण, लेकिन यू हैव टू बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू गिव थिंक कि अगर इसका अगर रेजुअल जो मेरा टाइम है इसमें मैं कैसे इसको कम कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज करूँ, या इसको कोई टेक्नोलॉजी मेरा जो कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी को चेंज करूँ। यू हैव टू एग्जॉस्ट दैट सिस्टम इंस्टेड ऑफ जस्ट फ्लोइंग विद दिस सिस्टम की हमारा सिस्टम है, दैट मींस बेसिकली यू हैव टू बी कॉस्ट कॉन्शियस, टाइम कॉन्शियस. Plus, you need to be problem solver and not the only talking about then the problems. He is not a witch hunting. Means witch hunting always it is a the company which has run. It is a teamwork. I can say the whatever we have achieved is a teamwork. It is not. In case of failure, again is a teamwork failure. It is not individual. Right. Absolutely. Means that is a big thing. You cannot blame anybody in this account of you only. That's accountability. Yes, accountability that is there. Means everybody has to be responsible. It is, once is a teamwork, means all team has to be shared for any vehicles that is going to happen. Wonderful skills shared by sir to be a good leader. Actually, that goes for every leader, whatever department, whatever sector they are working in. But thank you so much for sharing such things. Sir, last question अब हमारी segment का आता है.
what is that one transformation in the Indian metro ecosystem you are most proud to have witnessed or contributed to? इनफैक्ट जब मैं आई वॉज इंचार्ज फॉर एज चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर गुड़गांव मेट्रो, जी मैं गुड़गांव मेट्रो बना रहा था, वर्क वाज अवॉर्डेड। एक मेट्रो में ट्रेन डिपो होता है, okay. जो ट्रेन डिपो का एरिया दैट वाज फॉलिंग इन समवेयर इन कुतुब नियर कुतुब मीनार एरिया था। एंड बाद में पता लगा कि ये रिच एरिया है जहां हमें परमिशन नहीं मिल सकता। हम अप्रोच कोर्ट को किए, लेकिन कोर्ट ने डिनाई कर दिया, नो वी कैन नॉट गिव यू फॉर एस्टैब्लिशिंग द ट्रेन डिपो। अब प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका, काम शुरू हो गया, और आपको अगर ट्रेन डिपो नहीं मिला, बिकॉज इट इज वेल प्लान्ड, इंडिकेटेड, हमने प्लानिंग कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है। इन बिटवीन नाउ आई हैव बीन टोल्ड बाय डॉक्टर ईसरधन कि यू हैव टू लुक फॉर सम अल्टरनेटिव। तो उनके साथ मैं मूव किया, और एक सुल्तानपुर जगह है, दोज हु आर फैमिलियर विद दैट, एमजी रोड पर एक सुल्तानपुर जगह है, वहाँ यूजुअली हम ट्रेन जो डिपो है 30 हेक्टेयर जमीन, 25 हेक्टेयर जमीन चाहते हैं जहां हम ट्रेन का मेंटेनेंस कर सके, वर्कशॉप है, काफी चीजें वहां हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो हमें एक 6.5 हेक्टेयर जमीन मिला। अब 6.5 हेक्टेयर जमीन में जो हमने कंसीव 25 हेक्टेयर की जो चीजें हैं वो कैसे करें? exactly. तो वो चीजें हमने फिर क्या कहा कि क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट तो डिले लाइक एनीथिंग, और इज कॉस्ट ओवर वन, यू डोंट नो द व्हाट दी फ्यूचर का क्या होगा। तो हमने 6.5 हेक्टेयर जमीन में ही डिपो की प्लानिंग की, और 75% सेटिस्फेक्शन जो हम कर सकते हैं उसके अंदर किया। एंड हमारा कहना चाहिए कि हमारा एक दिन में डिले नहीं हुआ। मीन्स 2006 हमने सितंबर में काम शुरू किया, और हमने जून में कहा था कि 2010 में काम कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रॉब्लम रही, काम एरिया चेंज हुआ, ऑल टुगेदर पूरी प्लानिंग करनी पड़ी, दोबारा काम किया। उस रोड पर कोई अगर अब जाए, दिखेगा गुड़गांव रोड पर 1 किलोमीटर लाइन है, जो उसको पोर्टल कहते हैं, जो आपका स्टील गर्डर पर बनता है। पहले वो कंक्रीट बनाना था, उसमें ये सब नहीं था, लेकिन जब ये हमें डिपो आया तो मेरे को 1 किलोमीटर का पोर्टल स्टील का बनाना पड़ गया। तो कंटिन्यूअस 1 किलोमीटर हमने स्टील के गर्डर्स बना दिए। okay. और डिपो हमने जो बताया ना 25 हेक्टेयर जमीन के अंदर 6.5 हेक्टेयर में हमने एटलीस्ट 75% हमने सेटिस्फेक्शन जो दैट वी हैव एबल टू डू, एंड वी हैव नॉट डिलेड। दैट इज, आई कैन टेल यू कि अगर ये नहीं कि आपको 25 ही है जो मिल गया इसी में करना है, इसके अलावा ना दायना कर सकते हैं ना वी कैन बाय, यू हैव टू थिंक out of box. So you thought out of the box. जाके how you solved that problem actually. Yes. So that's a great inspiring. तो लोग ये ना सोचे कि ये जो जमीन है इसी में ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। सेकंड, उसी लाइन में एक 2 हेक्टेयर का एक स्टेशन था, छतरपुर स्टेशन, अगेन उसी लाइन में गुड़गांव में है। तो 4 साल का ड्यूरेशन था काम करने का, 3 साल निकल गए, लैंड नहीं मिला, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में उसको फिर हमें अलॉट किया। अब मेरे पास चाहते तो हम 4 साल और बढ़ा सकते थे, क्योंकि आई हैव अ रीजन फॉर दैट, बट डॉक्टर सेज देयर नथिंग डूइंग, यू हैव टू डू विद इन दैट। देन वी हैव सेट टुगेदर एंड फाइंड कि अब ये स्टेशन को हम स्टील स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, स्टील का पूरा बना देंगे। तो हमने वो 9 महीने के अंदर स्टील स्ट्रक्चर में, जो अक्सर जो 3 साल लगता है स्टेशंस को बनाने में, हमने 9 महीने बना दिया। अगर कोई जाकर विजिट करे छतरपुर स्टेशन, वो पूरा स्टील का बना हुआ कंप्लीट, और एज ए रिजल्ट ऑन डॉट हमने जून 2010 में कंप्लीटेड। तो मीन्स अगेन आउट ऑफ बॉक्स, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ, वी कैन नॉट जस्ट कन्फाइन कि जब जमीन मिला तो D+ हमारा 3 साल होगा, नो, वी हैव टू डू थिंक अबाउट दैट। थोड़ा सा कॉस्ट हमें लगा, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट उसी बजट में हो। हमारा अगर भाई 2 साल पहले अगर कोई लाइन खुल गई तो टिकटिंग सिस्टम, लोगों को कन्वीनियंस, काफी चीजें तो ये भी तो हो गई हमें। That's really a great thing, sir. Very remarkable and very inspiring story, sir. So
we would like to thank you so much for coming here, for sharing such deep insights, valuable information, and such inspiring stories about you, about your other leaders, about your team as well. There are a lot of key takeaways from this episode actually, and I'm sure not only me, हमारी ऑडियंस भी बहुत इंस्पायर्ड हुई होगी आपसे. Thank you once again. So, from understanding how metro systems are becoming smarter and to why India needs tech-savvy rail professionals and leaders, this conversation has been a true eye-opener. So, thank you once again. Thank you so much. So, as we look ahead, it's clear find that metros and high-speed rails will not just move people, they will move economies, they will move sustainability goals and the entire nation forward. For our listeners, if you are passionate about railways, technology, or smart mobility, do subscribe to the Zenith Dialogues channel. And because we are committed to building the next generation of leaders for India's transportation revolution. Until next time, stay curious and stay future ready. Thank you once again. Namaskar. Jai Hind. Namaskar.